back to Sophia Ma'am's channel, and as you have requested to make a video on the chapter gravitation numerical, so मैं आपके लिए gravitation के questions लेके आई हूँ आज। and मैंने gravitation के numericals को 4 parts में divide किया है। The first part is force of gravitation, that we have to calculate the force of gravitation, and second is acceleration due to gravity, then free fall and the weight and the mass numericals. So as you all know that universal law of gravitation, every body in the universe attract every other body with a force that is directly proportional to the product of the mass and is inversely proportional to the square of the distances between them. And G is the gravitation constant. You already know this about in the theory part. And here G is the gravitation constant. Mass is the suppose mass of the earth or mass of the moon. Suppose you are taking a distance between them. Then acceleration due to gravity is capital G m by r square. Here acceleration due to gravity we are calculating here for the earth. It is different for the different planets. So capital G is the gravitation constant. Mass is the m is the mass of the particular planet, and r square is the distance between the two planets. Okay, and then there is the free fall. Free fall numericals we will do in the next video, and in the free fall video it is same as that of the motion and time. Whatever we have done in the motion chapter, the numerical is same, the formula is same, like v is equal to u plus at there we were doing, but here instead of a we will take g, acceleration due to gravity. Similarly, x is equal to ut plus half gt square, and g we are taking as the acceleration due to gravity. I will explain this formula again in the next video. And then weight of the mass, weight in the mass, and weight is equal to mass into gravity. So इस formulas को note down कर लीजिए, and in this video I will cover only first and the second part. Rest third and fourth part I will cover into the next video. तो students, हम सबसे पहले force of gravitation calculate करने के लिए numericals लेते हैं. तो पहले हम इसे read कर लेते हैं. Calculate the force of gravitation. Force of gravitation calculate करना है. Due to earth on a ball. Earth का gravitation force निकालना है जो कि वो एक ball पे लगा रही है. Of 1 kg mass lying on the ground. Here mass of the earth given, radius of the earth given, and the gravitation constant का वैल्यू हमें पता है 6.7 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो क्या है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन आप ठीक से रीड कर लीजिए. क्वेश्चन में पूछा है कि देयर इज अ अर्थ है जिसका मास आपको गिवन है 6 into 10 power 24 kg, एंड इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉल है जिसका वेट कितना है 1 kg, एंड आपका अर्थ का वेट है 10 power 24 kg. तो इट इज आस्किंग दैट कि अर्थ उस बॉल पे कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगी, किस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से वो अपनी तरफ उसको पुल करेगी. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट फोर्स. अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू, बोलिए, यस, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, एक बात आप हमेशा याद रखेंगे बच्चे पहले, कि जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यूनिट को अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि अगर यूनिट सही से नहीं है, आपकी यूनिट सही पे नहीं है, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. जैसे मास हमेशा केजी में होगा, ये बात ध्यान रखिए, मास हमेशा केजी में होगा, एंड डिस्टेंस हमेशा मीटर में होगा. ठीक है, डिस्टेंस मीटर में होगा, मास जो होगा वो केजी में होगा. तो व्हाट थिंग्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हम पहले वो लिख लेते हैं. मास ऑफ द अर्थ इज गिवन. राइट डाउन मास ऑफ द अर्थ. ठीक है, मास ऑफ द अर्थ. व्हाट इज गिवन मास ऑफ द अर्थ, 6 into 10 power 24 kg. तो मास ऑफ द अर्थ को हम m1 ले लेते हैं. ठीक है, दैट मींस m1 इज गिवन 6 into 10 power 24 kg. मास ऑफ द बॉल जिसको हम m2 मान लेते हैं,
वो कितना दिया हुआ है आपको 1 kg ओनली। तो इसका यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन इन kg। नाउ डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द अर्थ। सो रेडियस ऑफ द अर्थ यानी कि डिस्टेंस जो है आपका डी स्क्वायर जो है आपका, अब डी स्क्वायर को आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस जो आपको दे रखा है डी, दैट इज गिवन एज 6.4 इंटू 10³ किलोमीटर। नाउ यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा किलोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो ये आपका बन गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। यहाँ तो कोई डाउट? ओके, नाउ जी हमारे पास है ही वैल्यू, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। नाउ कम टू F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻11। m1 कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 जो कि हमने अर्थ के मास को लिया था। m2 is 1 kg. Okay. Then d square means 6.4 into 10⁻6 को आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो जब आप इसको स्प्लिट करेंगे, है ना, जैसे आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए 6.7 इंटू 6 और पावर को आप क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10⁻4 से 1 गया 3 एंड 2 से 1 गया 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 2 बार 6.4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और पावर क्या होगा 10⁻12। तो जब आप इसको न्यूमेरिकल को पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9.8 न्यूटन। आप सॉल्व करके देखिए, ये तो एक्सपोनेंट से चला जाएगा 13 - 12 10 बच जाएंगे इसमें, और ये आप इसको कैलकुलेट करिए तो टोटल कैलकुलेशन करके आपको जो आंसर आएगा दैट इज 9.8 मीटर। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्टली हमने बस फॉर्मूला पुट किया है। एक चेंजेस हमने यहाँ पे किया है, यूनिट को चेंज किया है। अदरवाइज हमने एज इट इज फॉर्मूला में जी की वैल्यू पुट की, मास 1 की वैल्यू पुट की, मास 2 की वैल्यू पुट किया यहाँ पे मैंने, एंड डी स्क्वायर द रेडियस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया एंड नॉर्मल न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। Now students, let's take the second example. The mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10⁵ km, calculate the force exerted by the earth on the moon. That means what it is saying that suppose this is the earth and its mass is 6 into 10⁻24 kg. ये तो हमेशा ही फिक्स रहेगा इसका मास जो है। देन मून का मास आपको दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ये भी फिक्स्ड है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ओके, सो हम देख लेते हैं पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है। So what is given? Mass of the earth. So mass of the earth that is m1 is equal to 6 into 10⁻24 kg. Then mass of the moon that is m2 and it is 7.4 into 10⁻22 kg. Both of these identities are given in the question. Then come to distance between the earth and the moon, between the earth and the moon. It is given as 3.84 into 10⁵ किलोमीटर। अब आपको क्या कुछ दिमाग में स्ट्राइक किया कि हम क्या चेंजेस करेंगे? यूनिट्स देख लेते हैं एक बार। मास का यूनिट तो केजी में है, कोई टेंशन नहीं है, पर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून जो है वो आपको किलोमीटर में दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर में हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एसआई यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई यूनिट आपका डिस्टेंस का क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज
मीटर। तो कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? यस, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हो जाएगा ये 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका G m1 m2 बाई डी का स्क्वायर। तो G कितना दे रखा है? 6.7 इंटू 10⁻−11। ये आप याद कर लो, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है? मास आपको दे रखा है अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 kg। मास का मून आपको गिवन है 7.4 इंटू 10⁻22 kg डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको आप ले लीजिए 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻−11 बाय, ये चूंकि दो बार स्क्वायर करना है आपको तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻16 8 to 16। नॉर्मल एक्सपोनेंट के रूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं बच्चे। आपको मैथ्स वीक है तो पहले एक्सपोनेंट चैप्टर्स को अच्छे से एक बार कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे आके अटक जाएंगे। दिस इज अ नॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना नहीं सीखा है, आप साइंस का सारा क्वेश्चन कर लेंगे मगर आप यहाँ पे आके अटक जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप एक्सपोनेंट के रूप में क्या करेंगे? पावर्स क्या होते हैं? ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद यहाँ पावर माइनस हो जाएगा इसके साथ, एंड यहाँ पे भी फिर डिनोमिनेटर में 16 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता ही होगा, आप कर लेंगे। आप इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ये कैलकुलेशन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट के आंसर चेक कीजिए। द आंसर विल बी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यहाँ पे यूनिट क्या है? फोर्स है, और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, तो आप यहाँ पे न्यूटन पुट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3, ये आपको होमवर्क करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, तो उसको नोट कर लो, मैं रीड कर लेती हूँ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10⁻24 kg and that of the sun is 2 into 10⁻30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10⁻11 meter. तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। सो दिस इज योर होमवर्क, डू इट एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी इसका कि इट इज राइट और रॉन्ग। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी विल गो फॉर द टाइप 2 न्यूमेरिकल, तो जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज योर जी। तो जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m बाई, अब डी स्क्वायर हम लिखते हैं ना, तो डी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखने ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप क्लियर हो कि जी जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है अच्छे से। एम जो है मास ऑफ द प्लैनेट, या जो भी चीज़ का आपको निकालना है, प्लैनेट का, मून का, अर्थ का, तो मास ऑफ द थिंग, ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड देन डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल टाइप 2। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं टाइप 2 का, दैट इज टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत इजी है, मतलब बच्चों वाला खेल है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स क्या? स्मॉल जी हमें निकालना है। ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मतलब जब आप मून पे जाएंगे तो मून आपके ऊपर कितनी ग्रेविटी लगाएगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट। मास ऑफ द मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। ठीक
ठीक है, तो कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून इज गिवन 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, मैंने आपको कहा था डी के बदले हम आर भी ले सकते हैं, क्योंकि आर जनरली रेडियस ही होता है, तो कंफ्यूजन ना हो तो हम डी को छोड़ के आर ले लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून इज गिवन, यूनिट का ख्याल रखेंगे 174 किलोमीटर, यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे तो केजी में है और ये किलोमीटर में है, तो कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में। ये हो गया 174 इंटू 1 2 3 4, तो 4 मीटर। ठीक है, एंड जी इज गिवन एज 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कैपिटल जी मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप ले लो यहाँ पे जी कितना दे रखा है आपको, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है, डिवाइडेड बाय what is r? r is 174 इंटू 10⁻4। तो सेम आप 6.7 ले लीजिए इधर इंटू 7.4, देन ये इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 174 इंटू 174 इंटू 10⁻8। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे सारा, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कर देती हूँ मैं, बस बाकी कैलकुलेशन आप करेंगे, एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन बस कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.63। ठीक है, 1.63। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, व्हाट आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मास देन रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर करना मत भूलना, स्क्वायर डालना मत भूलना, अगर भूलोगे तो फिर क्वेश्चन आपका टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई, बहुत ईजी है, इसका भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगी अभी। नाउ क्लास, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, बहुत ईजी है, मैं रीड कर देती हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg, radius of the earth is 6.4 into 10⁻3 kilometer, and g is equal to 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।